Sorry about that. Some things never change, and one of those things will be the internet quality in this city. PTCL nahi hai, it's not PTCL, it's transferred. Yes, Satya, the y coordinates will not change. Yeah, okay. So let's resume. So your videos help a lot. Thanks a lot. Happy to help. Happy to help others. Okay. Good morning to all the students except one using PTCL. That could be a good one. But खैर मुझ पे ही घूम के आ जाएगा. Anyway, so basically मैं ये कह रहा था कि if we have a horizontal line, the one thing that will not change ever on a horizontal line is the y coordinate. ठीक है? So that means एक चीज़ हम आंखें बंद करके बता सकते हैं, and that is the y coordinate of a and b, और वो आपका 2 ही होगा. ठीक है? Please, I want everyone to understand this because it's very important. So let's sequence में चलते हैं. ठीक है? Sequence ये है कि अगर AB का gradient 0 है, that means AB is a horizontal line. Okay? And if AB is a horizontal line, that means no matter where I go on the horizontal line, अगर एक point पे y coordinate 2 है, तो किसी भी point पे मैं चला जाऊँ, the y coordinate will always forever be 2. Okay? Now, remember the question also told you the length of the line AB. Now, if M is the midpoint, what that tells me is that कि M to B जो distance होगा वो 5 होगा, and A to M जो distance होगा वो भी 5 होगा. Okay? Now, how do you find out the x coordinate of A and B now? Here's how we find out the x coordinate of A and B. अब देखो M का x coordinate क्या है 1. अब अगर मैं rightwards जा रहा हूँ, so that means I'm gonna plus 5. Okay, I'm gonna do 1 plus 5. What do we get? 1 plus 5 is equals to 6. And if I'm going leftwards, so अगर आप horizontal line पे travel कर रहे हो, and if you're going leftwards या if you're going backwards, तो आप क्या करेंगे? आप x minus 5 करेंगे. So that means you don't even need to use the length formula, okay? Ibrahim, you don't need to use the length formula. ठीक है? So 1 minus 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? तो minus 4 हो जाएगा. So A के coordinates आ गए हमारे पास क्या? minus 4, 2 और B के coordinates आ गए हमारे पास क्या? 6, 2. ठीक है? Yes, add 5 and subtract 5. That's literally all there is. Okay? Sir, ऐसा भी तो mention कर सकते हैं कि gradient is infinite, तो उसमें if the gradient is infinity, तो yes, तो उसमें x सेम रहेगा. ठीक है? अच्छा, okay. Now, अब देखो जब मैं part B पे आ रहा हूँ, so one thing that is not changing is the information that was given to me over here. ठीक है? ये information मैं अभी भी use कर सकता हूँ. तो इस information को करते हैं copy और इसको यहाँ पे करते हैं paste. ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी भी intact हैं. Now, over here the question says if the gradient of line AB is 3 upon 4. अब 3 upon 4 क्या है? 3 upon 4 is a positive gradient. ठीक है? That means जो मेरी line होगी वो एक rising line होगी. सही है? अच्छा, अब देखो gradient का formula हम पढ़ते तो हैं y2 minus y1 over x2 minus x1. ठीक है? लेकिन there's another way to understand gradient, and that is it is the ratio of rise is to run. One way to understand the gradient is that it is the ratio of rise is to run. Okay? Now, अब let's understand how we can apply that over here. अब let's say ये आपकी line AB है. ठीक है? ये आपके A के coordinates आ गए. क्या है? नहीं पता. और ये आपके B के coordinates आ गए. But one thing that we do know is कि M के जो coordinates हैं वो 1, 2 हैं. ठीक है? और जो line की length है वो भी हमें पता है कि वो किसके बराबर है? वो 10 के बराबर है. ये सारी चीज़ें तो हमें पता है. अब if M is the midpoint and the length of the line is 10, that means M to B the distance will be 5 and A to M the distance will also be 5. Okay? Now let's see. अगर हम M से B पे जा रहे हैं तो now remember the gradient is basically the ratio of rises to run. ठीक है? ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि gradient जो है is the ratio of rises to run. सही है? अच्छा. So gradient क्या है हमारा? 3 upon 4. So that means rise कितना किया line है? 3 units. And run कितना किया है? 4 units. Alright, so what I'm going to do over here is, I want you guys to pay close attention, कि इसको देखो ज़रा गौर से. अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 3 और 4 है, तो हम एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है?
और इधर भी बना देते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन, इट्स 3:4। दैट मीन्स के हमारे फ्रॉम 2 पॉइंट्स जो राइज किए लाइन ने वो कितना किया, वो 3 यूनिट्स राइज किए, और जो रन किया वो कितना किया, वो 4 यूनिट्स रन किया। एंड दिस मेक्स सेंस ऑल्सो। व्हाई डज दिस मेक सेंस? अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो सो यू विल अंडरस्टैंड कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, और ये 90 डिग्री ट्राइंगल इसलिए बन रहा है बिकॉज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इन फैक्ट इक्वल टू 5 स्क्वायर। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज़ होगी, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखो, अब ज़रा दिस इज़ वेयर व्हाट इट ऑल कम्स डाउन टू। सो बेसिकली अब हम m से b पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम m टूवर्ड्स b। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ m? इट इज 1। इफ आई मूव 4 यूनिट्स rightwards, that means what am I going to do? That means what am I going to do is, what I'm going to do now is कि मैं इसमें 4 ऐड करूँगा। सो दैट मीन्स b का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे आएगा, उसमें हम 1 में 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर m का y कोऑर्डिनेट क्या है, m का y कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। दैट मीन्स के इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 2 होगा। लेकिन इफ आई एम मूविंग अपवर्ड्स, सो इफ आई एम मूविंग अपवर्ड्स दैट मीन्स के मैं y कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करूँगा, मैं y कोऑर्डिनेट में 3 ऐड करूँगा। सो व्हाट डू आई हैव, आई नाउ हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, और वो क्या हो गए, वो हो गए 5,5। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास आ गए b के कोऑर्डिनेट्स 5,5, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ हमने एग्जैक्टली क्या करनी है, यही चीज़ हमने एग्जैक्टली करनी है a के लिए। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम m पे खड़े हैं। इफ़ आई मूव 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स किस में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा। और कितने का चेंज आएगा, 3 यूनिट्स का चेंज आएगा। और 3 यूनिट्स क्या होगा, इफ़ आई मूविंग डाउनवर्ड्स, तो 3 यूनिट्स माइनस करना पड़ेगा। सो विल डू 2 minus 3, and just like that if I'm moving leftwards, so if I'm over here and if I'm moving leftwards, so यहाँ पे x coordinate क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा x coordinate 1 है, okay, and if I'm moving leftwards, so that means मुझे क्या करना पड़ेगा, and how many units am I moving leftwards? I'm moving 4 units leftwards, so that means मुझे इसमें -4 करना पड़ेगा। So what is 1 minus 4? 1 minus 4 is, let's write them over here, -3, and what is 2 minus 3? That's -1. So -3 and -1, there you go, that's your answer, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से देखो, अंडरस्टैंड दिस। एंड इधर एक सवाल आया था कि सर टोटल 3 राइज हुआ है, देन व्हाई डिड यू डिवाइड इट इन 2 राइजेस? ओके, देखो, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई वाज होपिंग समवन वुड आस्क मी दैट। अब द रीज़न व्हाई आई हैड टू डिवाइड इट इनटू 2 इज़ बिकॉज कि ए बी की जो लेंथ है वो क्या है, वो 10 है, ठीक है। ए बी की जो लेंथ है वो है 10, ठीक है। एंड दिस कैन नॉट बी ट्रू कि ये आपका जो राइज है वो 3 हो और आपका जो रन है वो 4 हो, ठीक है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। द ओनली वे दिस कैन बी ट्रू इज़ व्हेन, लेट्स सी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते हैं अगर हम, इफ़ वी डू 4 स्क्वायर plus 3 squared, so what do we get? We get 5. So the only way this can be true is when you divide this into 2, ठीक है। and luckily for us we know exactly what the coordinates of the midpoint are, ठीक है। so now this is true, वो कैसे, कि अब हमें पता है the ratio of rises to run, we know that this is 3, this is 4, and this is 3, sorry, this is 4 and this is 3, and that is how this is 10 and this is 5 each, ठीक है। so that was a good question, Sadia. Is there any way to check our answer in the exam? Yes, of course there is, लेकिन इसके बाद ये गारंटी नहीं है कि आप वो एग्ज़ाम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर एक ही आंसर आप चेक कर पाएंगे और कोई आंसर नहीं चेक कर पाएंगे। Sir, do A-level streams? Most likely next year, let's see. Anyway, so question number 15 देखते हैं। Question number 15 says the diagram shows the lines x plus y is equals to 8 and 2y is equals to x plus 4. The shaded region on the diagram is defined by 3 inequalities. Write down these 3 inequalities. So this is fairly simple, ठीक है। बस ये देखो, लाइन सॉलिड हैं, 2 लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है, तीसरी लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है। लेकिन तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए
आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक सिंपल सा मैं आप लोगों से सवाल पूछने लगा हूँ। एक लाइन मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ और एक लाइन में ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन है या ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन है? Echo again? Oh, sorry. Just realized दोनों mics on है. Thank you. Green. Okay. Green is the correct answer. X plus y is equals to 8. कैसे पता चला? Because of y intercept. Y intercept is 8. और because of gradient. Gradient आपका y को subject बना लोगे तो -1 आ जाएगा. ठीक है, perfect. अच्छा, so now that we know what's what, अब हम inequality लिख सकते हैं. अब जो रीजन शेडेड है वो इस लाइन के नीचे है. दैट मीन्स x प्लस वाई इज़ लेसर देन और इक्वल टू 8. और जो शेड रीजन है वो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है. दैट मीन्स 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4. 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4. ठीक है. एंड देन जो आपकी ये वाली लाइन है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, इसकी इक्वेशन क्या होगी? What will be the equation of this line, which is the y-axis, by the way? This बताओ. x equals to 0. So इसकी जो equation होगी वो होगी x equals to 0, but since the region that we want is on the right side, so that means x is greater than or equal to 0. Okay, perfect. Okay, अब ये part B एक interesting सवाल है. Part B says another region R is defined by the inequalities x plus y is lesser than or equal to 8. That means green वाली line के नीचे, 2y is greater than or equal to x plus 4. That means blue वाली line के ऊपर, and y is greater than or equal to a. Okay, so this is where things get interesting. इसको ज़रा मैं अब erase कर रहा हूँ. अब मुझे ये बताओ, yes it's y is greater than or equal to a, मान लिया y is greater than or equal to a, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए if it was y is equals to a, so what kind of a line are we talking about? Are we talking about a horizontal line? Are we talking about a vertical line? We're talking about a horizontal line. ठीक है. So that means हमें एक ऐसी horizontal line बनानी है, सही है, such that, अब ज़रा condition पढ़ते हैं, such that एक ऐसा region आ जाए जिसमें the region should contain 5 points with integer coordinates. ठीक है. So we need to make a horizontal line such that we get a region that has 5 integer coordinates. And remember, all the points that are on the line या जो बिल्कुल border पे आ रहे हैं उनको भी हम count करेंगे. क्यों count करेंगे? Because what sign are we using here? We're using equal to, greater than or equal to या lesser than or equal to, and also because कि हमारी जो lines हैं वो solid है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा trial and error करते हैं. ठीक है. And let's start from here. Let's start from the very top. अगर हम let's say कहते हैं कि y is greater than or equal, अगर let's say हम ये वाली line लेते हैं, ठीक है, तो इस वाली लाइन में ज़रा काउंट करो कितने रीजन्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं. इनफैक्ट रीजन तो एक ही आ रहा है, पॉइंट कितने आ रहे हैं? एक ये पॉइंट आ रहा है 1, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है. कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? टोटल हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए. लेकिन क्वेश्चन ने क्या कंडीशन लगाई है? क्वेश्चन ने कंडीशन ही लगाई है कि आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए इन टोटल. आपके पास टोटल लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है. ठीक है. 2y is अच्छा ठीक है 2y is lesser than or equal to x plus 4. okay my bad, didn't read the question correctly. ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि x plus y is greater than or lesser than or equal to 8. that means इसके नीचे होना चाहिए. ठीक है. और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका 2y is lesser than or equal to x plus 4. that means इसके भी नीचे होना चाहिए. ठीक है, सही है, my bad. okay. अब तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सच दैट कि हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास एक ऐसा इनक्लोज्ड रीजन आना चाहिए जिसमें हमारे पास 5 इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हों. ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो बेसिकली पहले तो ज़रा हम ये पढ़ते हैं. अनदर रीजन आर इज़ डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज x प्लस वाई इज़ लेसर देन और इक्वल टू 8. सो दैट मीन्स इस वाली लाइन जो आप देख रहे हो इसके नीचे होगा. ठीक है, x प्लस वाई इज़ लेसर देन और इक्वल टू 8 इस लाइन के नीचे होगा. 2y is lesser than or equal to x plus 4. that means इस लाइन के भी नीचे होगा. और
तीसरी लाइन हमने खुद बनानी है सच दैट कि हमारे पास जो फाइनल रीजन आए उसमें 5 ऐसे पॉइंट्स हो जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो, ठीक है। तो इस वाली लाइन के नीचे नीचे रहना है, इस वाली लाइन के भी नीचे नीचे रहना है, सही है, और तीसरी लाइन अपनी मर्ज़ी से बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स डू सम ट्रायल एंड एरर, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस लाइन। अब अगर हम ये लाइन बनाते हैं तो हमारा कौन सा रीजन बन रहा है, ये रीजन बन रहा है, ठीक है। अब ये रीजन में देखते हैं हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, वी नीड टू ट्राई आउट सम अदर लाइन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो कुछ मैंने हाईलाइट किया है इसको इरेज करते हैं। अब इस लाइन को स्लाइड करके अगर नीचे लेके जाएंगे इसको तो फिर तो हमारे कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज़ होंगे, अगर मैं इसको स्लाइड करके और नीचे लेके जाऊँगा तो फिर तो कोऑर्डिनेट्स और इंक्रीज़ होंगे। सो इंस्टेड हम क्या करते हैं, इंस्टेड इसको स्लाइड करके ऊपर लेके जाते हैं। अब अगर मैं इसको स्लाइड करके ऊपर लेके जाता हूँ, एंड इफ आई कीप अ हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स्ड ओवर हियर, देन लेट्स सी कि इस रीजन आर में, ये जो हमारा रीजन आर अब बन रहा है विच इज़ दिस रीजन, इसमें हमारे पास कितने ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके एक्स और वाई इंटीजर हैं। सो लेट्स सी 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। सो दैट मीन्स कहाँ ए की क्या वैल्यू हुई, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है सिंस y is greater than or equal to 3 एंड सवाल ने हमसे कहा था y is greater than or equal to a, so a is equals to what, a is equals to 3, ठीक है। अच्छा, अब I'll give you guys a quick recap क्योंकि ये ज़रा थोड़ा ट्रिकी सवाल है। सो x plus y is lesser than or equal to 8 का मतलब इस लाइन के नीचे, 2y is lesser than or equal to, sorry, x plus y is lesser than or equal to 8 का मतलब इस लाइन के नीचे, एंड 2y is lesser than or equal to x plus 4 का मतलब इस लाइन के नीचे। तीसरी लाइन हमें ऐसे बनानी है such that after we are done making that line we should have a region where you have only 5 points with integer coordinates। so पहले हमने 2 पे ट्राई किया, 2 पे 5 से ज़्यादा आ रहा था, तो 2 से नीचे जा नहीं सकते क्योंकि फिर और ज़्यादा हो जाएगा, तो इंस्टेड वी स्लिट दिस लाइन अपवर्ड्स एंड वी सॉ कि जो ऊपर वाली लाइन है वो आपकी, अगर हम y = 3 पे एक लाइन रखते हैं तो इन दैट केस वी हैव 5 सच पॉइंट्स जिसमें वी हैव इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ट्रायल एंड एरर के अलावा कोई मेथड नहीं बेटा, आई ऑलवेज प्रेफर टू डू सम ट्रायल एंड एरर, ठीक है। सो a की वैल्यू 3 आ गई, लेट्स राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज 3। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स आर बेसिकली values, x y values जो कि whole numbers हैं, that's it। So let's say y was greater than a, how would you do it? Okay, if y was greater than a, so in that case जो y जो horizontal line पे points आ रहे हैं ना हम उनको नहीं गिनते। Six equations, okay Saad, 6 equations, interesting। सर अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो कट करके एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर द ओनली वे दैट यू कैन कम्युनिकेट विथ योर एग्जामिनर इज़ थ्रू द आंसर स्क्रिप्ट, ओके। सो डू नॉट लीव एनीथिंग इन डाउट। आप एग्जामिनर से फ़ेस टू फेस मिल के उसको नहीं बता सकते कि भाई ये मैंने यहाँ पे किया, जैसे आप अपने स्कूल टीचर्स को चलो बता देते हैं कि सर मैंने इसकी वर्किंग यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे किया, सर आप ये चेक करना भूल गए। सो यू डोंट हैव that leverage when you're doing CIE, so in that case try and keep it as clear, crystal clear as possible ताकि आपके एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। आपके स्कूल टीचर तो फिर भी आप पे तरस खा के या रहम खा के हो सकते हैं आपकी वर्किंग ढूंढ लें कहीं पे कि चलो शायद यहाँ पे की हो, यहाँ पे की हो, और दे मे नो यू पर्सनली कि हाँ चलो दिस इज के you know a certain student should have done this question या shouldn't have or anything like that, but जब आप एग्ज़ाम करें तो please do not leave anything to chance या do not leave anything that's not clear। जो भी चीज़ अगर आपने उस पेज पे नहीं की, किसी और पेज पे की है, पेज बोरो किया है, जो भी किया है, सो आप उसको मेंशन करें क्लियरली कि ये मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, ठीक है। a = 4 नहीं हो सकता बिकॉज 4 पे वी जस्ट सॉ कि हमारे पॉइंट्स एक्सीड हो रहे थे, ठीक है। रेफरेंस दे दें इसका मतलब हाँ ऑफ कोर्स रेफरेंस देते हैं, मतलब जस्ट राइट इट कि आपने ये यहाँ पे किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, मे बी इफ़ यू डन इट एट द वेरी एंड और समथिंग एट अ ब्लैंक पेज, सो आप मेंशन कर दो उसको। इसमें ब्लैंक पेज नहीं है बट यू नो जिसमें हो, या यू कैन बोरो अ ब्लैंक पेज एंड देन मेंशन इट कि आपने वहाँ पे किया है, ठीक है। ओके
So coming back to question number 16. Question number 16 is fairly simple. Let's see what it says. It says Anil has some sweets with a mass of 600 grams. Correct to the nearest 10 grams. Write down the lower bound of the mass of the sweets. Okay. So 600 है. Correct to the nearest 10 grams है. 10 को 2 में split करो. 10 divided by 2 is 5. Upper bound के लिए add कर दो. 605 lower bound के लिए minus कर दो. So that's 595. Okay. So 595 is your final answer because the question is asking you for the lower bound. Okay, part B. Part B says Anil sells the sweets in small portions. Each sweet has a mass of 25 grams. Correct to the nearest gram. He sells 10 portions of sweets. Calculate the lower bound of the mass of the sweets remaining. Okay, so इस केस में हम क्या करेंगे? This is 25 grams. Correct to the nearest gram. इसमें आप ये नहीं करना प्लीज़ कि आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर लोअर बाउंड कर दो, ठीक है? ऐसे नहीं करना. सो पहले आप एक का लोअर बाउंड निकाल के उसको टाइम्स 10 करना. 10 इंटू लोअर बाउंड ऑफ 1 पोर्शन, ठीक है? ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है? सो हियर्स हाउ वी गोना डू इट. 25 grams है. Correct to the nearest gram, so split 1 2 ways, so you get 0.5. So you add 0.5 for the upper bound and subtract 0.5 for the lower bound. ठीक है? आप क्वेश्चन को लोअर बाउंड में इंटरेस्ट है, सो आप लोअर बाउंड लो 24.5 and you multiply it by 10. So what do you get? You get 245 and there you go. That's your final answer. ठीक है? I hope that's clear. Okay, now, any questions so far? Hopefully not. Acha. Question number 17. Let's do question number 17. Shouldn't it be by 15? By 15 what? Oh, sorry. Sweets remaining. Okay. My bad. Say. Okay. Hang on. I didn't read the question. Sorry. Okay. Sweets remaining. So देखो, पहले तो एक काम करते हैं. Sweets remaining का ज़रा फॉर्मूला निकालते हैं. फॉर्मूला बनाते हैं. Sweets remaining. Sorry, my bad. Sweets remaining हम कैसे करेंगे? Total minus सोल्ड, ठीक है? अब देखो, सिंस आपको स्वीट्स रिमेनिंग का लोअर बाउंड चाहिए, सही है? सिंस आपको स्वीट्स रिमेनिंग का लोअर बाउंड चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोना डू विद द टोटल एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोना डू विद द अमाउंट दैट इज सोल्ड, ठीक है? ये आपने इसको मैनिपुलेट करना है. अब ये प्लीज़ मत करना अगर दो वैल्यूज़ आपकी ऐड हो रही होती हैं, ठीक है? अगर आपकी दो वैल्यूज़ ऐड हो रही होती हैं और फिर आपको लोअर बाउंड चाहिए होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दोनों का लोअर बाउंड ले लेंगे, ठीक है? प्लीज़ रिमेंबर दिस. इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी और आपको ए का लोअर बाउंड चाहिए तो आप बी का भी लोअर बाउंड लोगे और सी का भी लोअर बाउंड लोगे, ठीक है? अच्छा, बट इफ़ यू हैव ए विच इज़ इक्वल टू बी माइनस सी, तो फिर आप क्या करोगे? आप अगर आपको ए का लोअर बाउंड चाहिए तो जो वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसका लोअर बाउंड लेंगे एंड द वैल्यू दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग आप उसका अपर बाउंड लोगे, ठीक है? आई रिपीट, द वैल्यू फ्रॉम विच यू आर सब्ट्रैक्टिंग उसको कम से कम करोगे एंड द वैल्यू दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा करोगे. देखो इसकी सिंपल सी मिसाल समझो. लॉस किसके बराबर होता है? लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के, ठीक है? अगर आप चाहते हैं आप अपना लॉस कम से कम करें, ठीक है, तो आप अपनी जो कॉस्ट है, जो भी कोई शर्ट है लेट्स से, उसको जो कॉस्ट आ रही है बनाने में आप उसको कम से कम करोगे. यू गोना डिक्रीज योर कॉस्ट्स एंड यू गोना इंक्रीज योर सेल्स. ओके, यू गोना इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस एज मच एज यू कैन. सो दैट वे जो आपको लॉस होगा वो कम से कम होगा, ठीक है? जस्ट यूज दिस लॉजिक ओवर हियर. if you're facing a loss and you want to minimize that, so what can you do to minimize a loss? You can decrease your cost price and you can increase your selling price, so that way your loss will be as less as possible. So just like that, if you want the mass of sweets remaining to be as less as possible, तो आप टोटल को कम से कम करोगे और जो आप बेचोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है? अब देखो जो टोटल था हमारे पास वो कितना था? टोटल हमारे पास 600 था, लेकिन अब हम 600 का कौन सा बाउंड लेंगे? हम लोअर बाउंड लेंगे, ठीक है? मतलब इसका हम लोअर बाउंड लेंगे और जो सोल्ड है उसका हम अपर बाउंड लेंगे. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव 595
और जो सोल्ड है उसका अपर बाउंड हम कैसे लेंगे, देखो अभी हमने 25 ग्राम्स था ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम, सो नियरेस्ट ग्राम का मतलब 1 ग्राम डिवाइड बाई 2, सो अपर बाउंड 25.5 हो जाएगा, लोअर बाउंड 24.5 हो जाएगा। ओके, सो सिंस हमें इसका अपर बाउंड चाहिए तो हम 10 इंटू 25.5 करेंगे। सो लेट्स वर्क दिस आउट, 595 माइनस, सॉरी लेट मी राइट दैट अगेन, 595 माइनस 255। नाउ 595 माइनस 255 करोगे तो ये हो जाएगा 340 ग्राम्स। सो 340 इज़ योर आंसर। ठीक है, सो आई एक्सप्लेन इट अगेन। बेसिकली अगर आपको इफ़ you're in a situation like this कि a is equals to b minus c और आपको a का क्या चाहिए, a का आपको लोअर बाउंड चाहिए, तो जिस वैल्यू में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका लोअर बाउंड लोगे और जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका अपर बाउंड लोगे। तो हमने क्या किया, स्वीट्स रिमेनिंग इज इक्वल्स टू टोटल माइनस सोल्ड, टोटल का लोअर बाउंड लिया, जो सेल कर दिया उसका अपर बाउंड लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 340। ये वीडियो आज आ जाएगी, अभी किसी ने पूछा ना इंपॉर्टेंट, ये यूल फाइंड द वीडियो टुडे, डोंट वरी। जैसे ये स्ट्रीम एंड होगी मैं अपलोड पे लगा दूंगा, प्रॉब्ली गोना टेक लाइक 20 मिनट्स टू अपलोड, 20-30 मिनट्स एंड देन यूल फाइंड इट। ठीक है, सर जस्ट लॉस्ट 2 मार्क्स, यस आई जस्ट लॉस्ट 2 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। यस, ये रूल हमेशा लगेगा, ये रूल, इफ़ यू हैव a इज इक्वल्स टू b माइनस c, सो दिस रूल विल ऑलवेज होल्ड। ठीक है, ओके, so in this it says in the diagram the bearing of b from a is 170 degrees and the bearing of a from c is 60 degrees, the bearing of c from b is x degrees. Okay, given that triangle abc is isosceles, abc is isosceles, ठीक है, तो अगर आपका abc एक isosceles triangle है, so नोट करो the question did not tell you कि कौन सी दो sides equal हैं। ठीक है, so that means we'll have to figure it out ourselves. Or maybe you won't have to figure it out, maybe you'll have to assume. Find the 3 possible values of x. Okay, so bearing का ना ये भी ज़रा थोड़ा tricky question था, a lot of students had problems in this. So सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो a पे नॉर्थ बना हुआ है ना उसको ज़रा एक्सटेंड करते हैं। अब इस नॉर्थ को अगर हमने एक्सटेंड कर दिया, दैट मीन्स कि ये जो छोटा सा एंगल आप देख रहे हो ये 10 डिग्रीज होगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स ये जो एंगल आप देख रहे हो ये 60 डिग्रीज होगा। सो ऑल टुगेदर ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 + 10, दैट मीन्स ऑल टुगेदर दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी 70 डिग्रीज। ये मैंने मिटाया इसलिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोइंग टू गेट मेसी, सो इस वजह से मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, ओके, नाउ अब notice how the question did not tell us, the question only told us that the triangle is isosceles, the question did not tell us that what two sides are equal, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता कि कौन से दो sides equal हैं तो हम उसकी मदद से हम figure out कर लेते हैं कि कौन से दो angles equal हैं। ठीक है, so what we're going to do now is we're going to have to assume one by one, so we're going to have to come up with 3 cases. So एक केस में हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि let AC is equals to AB, मतलब ये दोनों आपके इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं दैट मीन्स कि हम करेंगे 180 में से 70 माइनस और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 110 डिवाइड बाय 2 इज़ 55 डिग्रीज, तो ये हमारा 55 आ जाएगा। अच्छा, अब इफ़ यू गो स्टेप बैक तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड किया था और लाइन को एक्सटेंड करके ये एंगल हमें पता चल गया था कि ये एंगल किसके बराबर है, 10 के बराबर है। कैसे 10 के बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 होता है, 180 में से 170 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। नाउ इफ दिस एंगल इज 10 दैट मीन्स दिस लिटिल एंगल दैट यू सी ओवर हियर, लेट मी जूम इन, इज ऑल्सो गोइंग टू बी 10 डिग्रीज। ठीक है, अब ये 10 फिक्स हो गया, ये 10 नहीं चेंज होगा, जिस तरह से 70 नहीं चेंज होगा उस तरह से ये 10 भी चेंज नहीं होगा। सो अब मैं क्या करूँ, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ बिकॉज नाउ वी नो कि ये एग्जैक्टली कहाँ से है। अब देखो, अब एक पॉसिबल बेयरिंग क्या हो सकती है, एक पॉसिबल बेयरिंग ये हो सकती है, पहले तो देखो कि बेयरिंग हम निकालेंगे कैसे। जो बेसिकली बेयरिंग होगी वो आपका ये पूरा, अगर हम फुल सर्कल चले जाते हैं तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 360 में से हमें माइनस करना पड़ेगा ये 10। ठीक है, दिस 10 दैट यू आर लुकिंग एट एंड दिस 55, दैट मीन्स 360 माइनस 55 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 65 विच इज़ इक्वल टू 295 डिग्री। सो इतनी मेहनत करी हमने और अभी हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक पॉसिबिलिटी थी।
ठीक है ना, इसको रख देते हैं साइड पे। अब दूसरी और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, सिंस द क्वेश्चन लाइक आई सेड द क्वेश्चन हैजंट टोल्ड अस कि एग्जैक्टली कौन इक्वल है, क्वेश्चन ने बस हमें बता दिया कि हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिड नॉट टेल अस के कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई ये एंगल जो है वो 70 है, उसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, चलो, कि ये वाला एंगल जो है हमारा ये 70 है। इस केस में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका AC इज इक्वल्स टू CB। Okay, so what we are doing right now over here is we are saying कि let AC is equals to CB. So in that case हम क्या करेंगे, हम करेंगे 360 minus 70 plus 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 360 minus 80 के, which means कि एक एंगल क्या आ गया, एक एंगल आ गया हमारे पास 280 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड possible answer, 360 minus 80 which is equal to what, which is equal to 280 degrees। अच्छा, अब तीसरी possibility क्या हो सकती है, I'm sure you guys would have figured it out by now। Sir, paper 4 went well, thank you so much, especially okay, happy to hear that, good luck for the rest of the exams also। now तीसरी possibility ये हो सकती है कि ये 70 के बराबर हो। so in this case what we're doing is we're saying let AB is equals to BC, ठीक है। इन दैट केस ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा 180 minus 70 which is equal to what, which is equal to 40 degrees I believe, 140। हाँ, अब ये अगर 40 के बराबर है दैट मीन्स 360 में से माइनस करो क्या, 40 और 10 का सम, so that means 360 minus 50 which is equal to what, which is equal to 310 degrees। so all of this working just for 3 marks, ठीक है। so yeah, this was quite a challenging question। I'm pretty sure इसमें दो वैल्यूज़ तो स्टूडेंट्स की, या एक वैल्यू तो निकल जाएगी आसानी से। वैसे अगर आपने दूसरी वैल्यू निकाल ली so you should also be able to find out the third value also, ठीक है। सर इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, कल से आप 2017 एंड ऑनवर्ड्स P1 करवा सकते हैं, हैव टू मच डाउट्स इन दैट। देखो बेटा, मैं थ्रेशोल्ड के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, जो थ्रेशोल्ड मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड लो है मैं वो पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं देखता हूँ अगर 2017 इसका थ्रेशोल्ड लो होगा। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, उसमें जो रेड मैंने हाईलाइट किया ना, मैं वो वाले पेपर्स कराऊँगा, ठीक है। रेड वाले डिफ़िकल्ट हैं, ऑरेंज वाले मीडियम हैं और ग्रीन वाले आसान हैं, ठीक है। सो या okay, question number 18, it says the retardation of the car between t is equals to 8 and t is equals to 12 is 4 meter per second square। so can you explain how you got the 10 degree angle? yeah, of course I can। so 10 degree मेरे पास ऐसे आया कि हमने a पे जो नॉर्थ बना हुआ है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। अब a पे अगर हम नॉर्थ को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या आएगा, ये वाला एंगल 10 आ जाएगा। एंड नाउ बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स ये वाला एंगल भी क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, ठीक है। I hope that answers your question। ये सारा जुल्म हमारे साथ क्यों बेटा, आपके साथ थोड़ी हुआ है, ये तो जिन्होंने 2016 में पेपर दिया उनके साथ हुआ है। आप तो उनके बेचारों के सैक्रिफाइसेस से सीख रहे हैं, ठीक है। Okay, so question number 18 says the diagram is the speed time graph for part of a car's journey। the retardation का मतलब क्या होता है, retardation is just a fancy word for deceleration, ठीक है, of the car between t is equals to 8 and t is equals to 12। that means इस part of the journey की बात कर रहा है is 4। that means इस line का जो gradient होगा वो -4 है। अब gradient के लिए दो points ले लो, एक ये ले लो 8v और एक ये ले लो 12,0, ठीक है। so v minus 0 over 8 minus 12 is equals to -4। v upon -4 is equals to -4, so v is equals to 16, ठीक है। अब इसी तरह का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका भी बताया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक इसका हैक भी बताया था। अब इसका हैक क्या है, इसका हैक ये है, क्योंकि 2 मार्क के लिए एक मार्क के लिए माइट आर्ग्यू कि इतनी सारी वर्किंग जस्टिफाइड नहीं है, तो करने का आसान तरीका ये है कि देखो आपकी स्पीड जो है वो हर सेकंड किससे कम हो रही है, आपकी स्पीड जो है वो हर सेकंड 4 से कम हो रही है, ठीक है। सो ये सो
अब मुझे ये बताओ कि अगर आपकी स्पीड हर सेकंड 4 से कम हो रही है और ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम है ये 4 सेकंड्स है, सो दैट मीन्स 4 सेकंड में आपकी स्पीड कितने से कम हो जाएगी? 4 सेकंड्स में आपकी स्पीड 16 से कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि ये जो डिक्रीज़ आ रहा है ये क्या आ रहा है? 16 का डिक्रीज़ आ रहा है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मतलब again, if you can't do this, if you can't do it like this, then there's no need to feel inferior or anything. There's always this method, this conventional method that you can stick to. ठीक है? So yeah, ठीक है। आई थिंक मैं ये मेथड ना ही बताऊँ फ़िलहाल तो अच्छा है, वरना आप लोग जिनको नहीं समझ आएगा वो बेचारे कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। So let's just leave it there, okay? अच्छा, फिर it says find the total distance traveled by the car in the 12 seconds. Okay, so v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। v की वैल्यू हमने क्या निकाली? हमने 16 निकाली, सही है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड टाइम ग्राफ है और टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करके टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करें? आप एरिया निकाल लें, ठीक है। सो आई एम गोना फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, जो मैं रेड से आउटलाइन बना रहा हूँ। तो इसकी पैरेलल लाइंस ये होंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होंगी इसकी? 12 and 8, सो हाफ into sum of parallel sides, that means 12 and 8, and the height which is 16, ठीक है। So 1/2 into 12 plus 8 which is 20 into 16, so ये 2 ones are 2 10s are 10 into 16 क्या हो जाएगा? 160 meters. So there you go, 160 is our answer. फिजिक्स फॉर्मूला आप यूज़ तो कर सकते हो, और फिजिक्स फार्मूला इज़ नॉट लाइक के वो भी टेक्निकली देखा जाए तो वही फॉर्मूला है, उसमें भी सिर्फ फाइनल वेलोसिटी को v कहा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी को u कहा हुआ है, वरना अल्टीमेटली तो वो भी ग्रेडियंट ही निकालता है ना आपका। अल्टीमेटली तो वो भी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है। अवॉइड करो, मेरा आपका मशवरा ये होगा कि आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। काइनेमैटिक्स समझ नहीं आता बेटा? काइनेमैटिक्स क्या है? वो डिटेल्ड वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने पूरा फ्रॉम स्क्रैच काइनेमैटिक्स समझाया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है, स्पीड टाइम ग्राफ भी है, ठीक है। क्यों नहीं समझ आएगा? समझ आ जाएगा होपफुली। Happy for you, so glad to hear that. Good luck to you for the rest of the exams also. Question number 19. नहीं 1 hour 30 minute वाली नहीं, 1 hour 30 minute वाली, और मे बी 1 hour 30 minute वाली है, I don't know, मुझे याद नहीं honestly, ठीक है। Okay, question number 19 says prove that triangle PAO, so let's highlight triangle PAO, ठीक है। इसकी ज़रा मैं yeah, so there you go, here's PAO is congruent to triangle QBO. ओके, सो सिमिलर इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वैसे तो मुश्किल सवाल आते थे पहले, लेकिन ये एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर हियर ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट यू मेक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करो, सबसे पहले तो आप ये एंगल 90 होगा और ये एंगल 90 होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे, जो कि सवाल आपसे पूछेगा कि गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट दैट यू मेक, सो इधर आप रीज़न क्या लिखोगे? इधर आप रीज़न लिखोगे रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। सो यू विल से कि एंगल OAP इज़ इक्वल टू एंगल OPQ, और वजह क्या है? वजह इसकी है कि रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आपका ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? नॉट बिकॉज कि हमें दिखने में इक्वल लग रहे हैं, बट बिकॉज कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। सो एंगल AOP इज़ बेसिकली इक्वल टू एंगल POQ। Why? Because of vertically opposite. सही है। अब साइड देख लो, OA और OB आपके इक्वल होंगे, क्यों? अच्छा, टेक्निकली ये मुझे तीसरा स्टेटमेंट रखना चाहिए था, बिकॉज हम एंगल साइड एंगल की मदद से इसको प्रूव कर रहे हैं। सो OA इज इक्वल्स टू OB, क्यों? क्योंकि ये क्या है? दे आर बेसिकली रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। रेडियाई, इफ यू आर वंडरिंग व्हाट्स रेडियाई, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। यस, एंगल नॉट एंगल की मदद से हम प्रूव करते हैं सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट जो है वो एंगल साइड एंगल की मदद से होता है, ठीक है। सर मेरा पेपर 1 मेरा कभी भी टाइम में नहीं होता, लाइक 1-2 क्वेश्चंस रह जाते हैं।
तो बेटा कोशिश करो कि आप डू द ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट. ज़्यादा टाइम जो है हमारा वो जब लगता है जब हम मुश्किल क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. सो डू द ईजियर क्वेश्चन फर्स्ट सो दैट यू हैव more time to spend on the difficult ones. Yes, ये प्रॉपर्टी लिख दो तो अच्छा है कि ये आपने एंगल किया, ये साइड किया, ये एंगल किया. ठीक है, इस तरह से लिख लो. यस, टाइम की मेरी एक वीडियो है एंड दैट शुड बी इनफ. सिमिलैरिटी का टेस्ट ये होता है कि आपने किसी तरह से, अगर आपको साइड्स दिए हुए हैं, दोनों की तीन साइड्स दिए हुए हैं, तो आप तीनों साइड्स का रेशो बना के शो कर दो. या फिर आपको अगर आपको साइड्स नहीं दी हुई तो इफ समहाउ यू कैन प्रूव दैट ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स, देन दैट्स आल्सो इनफ. सर इज़ इट मैंडेटरी टू राइट प्रॉपर्टीज़? येस, यू शुड. मैंने कहा ना कि एग्जामिनर से कम्युनिकेट करने का आपका एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ थ्रू योर आंसर स्क्रिप्ट. ओके, सो डोंट लीव एनीथिंग टू चांस, डोंट लीव एनीथिंग टू डाउट. व्हाटएवर इट इज़, बी शॉर्ट बट टू द पॉइंट. ओके, डोंट बी एम्बिगुअस. कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं दो उसको. Video on limits of accuracy? Yes, I do have a video on limits of accuracy also. Okay, here's question number 20. Question number 20 says a bag of 10 counters of which 8 are blue and 2 are white. 2 counters are taken from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram to show the possible outcomes and their probabilities. Okay, so एक बैग में आपके पास 8 ब्लू हैं और 2 वाइट हैं. सो दैट मीन्स वाइट की probability तो स्ट्रेट अवे 2/10 हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, जब आपने ब्लू के बाद ब्लू निकाली, सो यू कैन सी कि आपका ब्लू एक कम हो गया और टोटल भी एक कम हो गया. लेकिन जब आप ब्लू के बाद वाइट निकालते हो तो वाइट की प्रॉबिलिटी जो होगी, वाइट उतनी की उतनी रहेंगी, लेकिन टोटल जो है आपका वो एक कम हो जाएगा. नो, इट्स नॉट 2/10 बिकॉज इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, सो इट्स गोना बी 2/9. एंड जस्ट लाइक दैट, वाइट के बाद अगर दोबारा वाइट निकालेंगे तो उसकी प्रॉबिलिटी 1/9 होगी. एंड अगर वाइट के बाद हम ब्लू निकालते हैं तो ब्लू तो 8 ही रहेंगी, लेकिन टोटल हमारा 9 होगा. वन वे टू चेक वेदर यू डन इट करेक्टली और नॉट, वो ये कि एक ब्रांच का सम करो और देखो कि 1 के बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहा. ठीक है, ये सब 1 के बराबर आएगा. सही है. Find the probability that both counters are blue. So that's pretty simple. 8/10 into 7/9. Let's work this out. 7 7s are 49, 7 8s are 56, 56/90. बेहतर था कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ही सिंप्लीफाई कर लेता. ठीक है, तो 2 4s are, 2 5s are, मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता. So 28/45. There you go. One counter is blue and the other is white. अब इसमें हम blue white, और जब भी हमारे जहन में यह आए ना कि या फिर ये भी तो हो सकता है, तो इन दैट केस वी ऐड देयर प्रोबेबिलिटीज. सो ब्लू वाइट का मतलब क्या, 8/10 इंटू 2/9. ठीक है, वाइट ब्लू का मतलब क्या, 2/10 इंटू 8/9. राइट, सो अगेन इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओप सॉरी, 2/10 इंटू 8/9. 2/10 इंटू 8/9. ठीक है, परफेक्ट. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिफोर वी एक्चुअली मल्टीप्लाई. So let's see how we can do that. 2 1s are, 2 5s are. So you get 8/45. Can't be simplified any further. 2 1s are, 2 5s are. So you get 8/45. So in this case you have 16/45. Please remember denominators add nahi hote. I've seen students do that also. So don't do that. 8/9 नहीं होगा, 8/10 की जगह आई एम नॉट श्योर कि आप एग्जैक्टली किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो. नहीं, सही है, सही है. पार्ट में 8/9 नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ 8/10. आई हैवंट रिटन 8/10 एनीवेयर. वेयर हैव आई रिटन 8/10? बी पार्ट 1 में आई हैवंट रिटन 8/10. इसको अगर आप 8/10 समझ रहे हो, सो दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माई हैंड राइटिंग, बट इट इज 8/10. Okay, now question number 21. It says the table shows some values of the function f of x for some values of x. ठीक है. Now let's see, सवाल क्या कह रहा है, express the function f of x in terms of x. Okay, अब देखो, पहले तो ये आइडेंटिटी, ये ना बेसिकली एक तरह से
आपका नंबर सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है. इट्स नॉट अ फंक्शंस क्वेश्चन, दिस इज मोर लाइक अ नंबर सीक्वेंसेस क्वेश्चन. ठीक है, इट्स लाइक 5, 7, 9, 11, 13 और आपसे बोल रहे हैं इसकी जनरल टर्म निकालो. ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि हर अगली टर्म पे जाने के लिए आप 2 कर रहे हो. ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 5 है. तो जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं क्या, a प्लस n-1 टाइम्स d. ठीक है, सो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस, अब n की जगह यहाँ पे क्या होगा, n की जगह यहाँ पे x होगा. ठीक है, x-1 एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज 2. और tn की जगह क्या होगा, tn की जगह आपका बेसिकली फंक्शन हो जाएगा f of x. ओके, सो दैट मीन्स f of x इज़ बेसिकली इक्वल टू 5 प्लस 2x minus 2. सो फंक्शन क्या बन गया आपका 3 plus 2x या 2x plus 3, whatever way you want to write it as. ठीक है, okay, g of minus 2 very simple, 8 minus 3 into minus 2 upon 2. so हो जाएगा 8 plus 6 upon 2. 8 plus 6 is 14, 14 upon 2 is 7. there you go. ठीक है, g inverse of x, set it equal to y. y is equals to 8 minus 3x upon 2. 2y is equals to 8 minus 3x, 8 minus 3x सॉरी, x को सब्जेक्ट बनाओ, 3x वहाँ ले जाओ, 2y को यहाँ ले आओ. 8 minus 2y is equals to 3x. x is equals to 8 minus 2y upon 3. Now do the final step. g inverse of x is equals to 8 minus 2x upon 3. There you go. Why did you use the AP formula? Because देखो technically अगर आप सिर्फ 5, 7, 9, 11, 13 को देखो, ठीक है, so ये basically आपका एक तरह से ये फर्स्ट टर्म है 5 है, सेकंड टर्म है 7 है, थर्ड टर्म है 9 है, फोर्थ टर्म है 11 है, फिफ्थ टर्म है 13 है. ठीक है, so that means आप consistently +2 कर रहे हो. so ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई. अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब कि आप कंसिस्टेंटली एक सर्टेन टर्म ऐड कर रहे हो और वो सर्टेन टर्म जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, सो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये इस तरह की सीक्वेंस का होता है जिसमें आप हर अगली टर्म पे जाने के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर रहे होते हो. ठीक है, सो Tn इज इक्वल्स टू व्हाट, Tn इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म 5 है, n-1, n क्या है, n को n ही रहने देना है बिकॉज वी फाइंडिंग आउट द nth टर्म. ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज 2. देयर यू गो, वर्क दिस आउट. इफ यू आर वंडरिंग कि ये AP क्या है, तो AP इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अरिथमेटिक सीक्वेंस सॉरी, दूसरी आपकी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस होती है, नंबर सीक्वेंस में आती है, उसकी जनरल टर्म निकालने का भी एक फॉर्मूला है. आई सजेस्ट यू वॉच दैट ऑल्सो. ठीक है, तो यार सर स्ट्रीम बंद क्यों हो गई थी, स्ट्रीम बंद इसलिए हो गई थी बेटा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. ठीक है, ओके, सो question number 22, standard form again very important, indices standard form दोनों बहुत important है for paper 1. so it says here in 2014 the population of Nigeria was, इसको कैसे पढ़ेंगे, 177,156,000. complete the table with the population of Nigeria using standard form, correct to two significant figures. अच्छा, अगर हम इसको standard form में convert करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो हो जाएगा 1. देखा जाए तो 1.77 so on and so forth into 10 to the power 8. ठीक है, बट सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है आपने इसको करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है. सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये 1.7 होगा या 1.8. अब हम इसको 1.8 इसलिए करेंगे क्योंकि 7 के बाद 7 है विच इज़ ग्रेटर दैन 5. सो 1.8 इंटू 10 to the power 8. ठीक है, pretty सिंपल. अच्छा, अब लेट्स सी सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे. सवाल आपसे कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ चैड वाज x टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नमीबिया. ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 24 इज x टाइम्स ऑफ 3, तो इसका क्या जवाब होगा. एंड डोंट जस्ट टेल मी कि आंसर क्या होगा, ऑल्सो टेल मी कि जो आंसर आप दे रहे हो वो आपने कैसे निकाला. ठीक है, नहीं, इट सेज टाइम्स. Sadia, be careful. It says times. 24 is x times of 3. What is the value of x? Divide, yes. Divide करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा. Yes, Rahat, you're right. Tell me the answer. 8, yes.
So 24 is 8 times of 3. So basically, how did we get this 8 over here? We got this 8 by dividing 24 by 3. Okay. So what am I going to do over here? Exactly the same thing. I'm going to take the population of Chad. ठीक है, इसको साइड पे लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था. I'm going to take the population of Chad, which is basically 1.1 times 10 to the power 7. ठीक है, and divide by the population of Namibia, which is 2.1 into 10 to the power 6. Okay. Now इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरा एक स्टैंडर्ड एक सेइंग है. इट्स नॉट लाइक माई ओन सेइंग, बट बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि हम एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस. सो 10 पावर 7 ओवर 10 पावर 6 को डिवाइड करोगे, सो 10 पावर 1 हो जाएगा. ठीक है, एंड 1.1 ओवर नीचे सिर्फ 2.2 बच जाएगा आपका. ठीक है, सो 1.1 इंटू 10 इज़ 11 एंड 2.2 आपका 2.2 ही रह गया. ओके, सो नाउ व्हाट यू लुकिंग एट, यू लुकिंग एट 11 ओवर 2.2, जिसको आप ये कर सकते हो डेसिमल में, डेसिमल से इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10 इंटू 10. सो व्हाट यू लुकिंग एट, यू लुकिंग एट 110 अपॉन 22. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है, 22 इंटू 5 इज़ 110. सो दैट मीन्स द आंसर हियर इज़ 5. ऑल्दो यू माइट आर्ग्यू कि ये हम 11 ओवर 2.2 करके भी हम देख सकते थे, एंड येस यूर राइट, 2.11 डिवाइड बाई 2.2 इज़ ऑल्सो 5. ठीक है, सो अगर आपकी मैथ इतनी अच्छी है कि आप डेसिमल्स में होते हुए डिवाइड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर एंड देन डिवाइड. ओके, all right, now I've been looking for your channel for 2 months now for AdMaths. Okay, अच्छी बात है, आपको मिल गया. बट as far as AdMaths content is concerned, AdMaths हम बनाएंगे इंशाल्लाह मैथ से फारिग, पेपर 1 से फारिग होके फिर हम थोड़ा AdMaths पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. Okay, part C. Part C says the population density of a country is measured as the number of people per square kilometer. It can be found by dividing the population of the country by its area. So basically population divided by area will give you what? Will give you the population density. ठीक है, आगे उसने आपको बताया भाई the area of Sudan is 1.86 into 10 to the power. The area of Sudan is 1.86 into 10 to the power 6. Okay, so we have that 1.86 into 10 to the power 6. Estimate the population density. So पहले तो population density का formula लिख लेते हैं. Population density is basically population divided by the area. So the population of Sudan we can see is 3.6 into 10 to the power 7, and the area is 1.86 into 10 to the power of 6. ठीक है, अब हमें चाहिए इसको करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर. तो हम भी एक काम करते हैं, हम इनको करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा, अगर हम इनको करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं, सो 3.6 इफ आई राउंड ऑफ 3.6 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ आई राउंड ऑफ 1.86 करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो 2 हो जाएगा. सो दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 7 over 2 into 10 to the power 6. Let's work this out. 10 to the power 7 over 10 to the power 6 is just going to be 10 to the power of 1 in the numerator, और 2 denominator में रह जाएगा. So 40 upon 2 is equals to 20, and there you go, 20 is your answer. ठीक है, not 4 upon 2, 40 upon 2. Okay, question number 23. Let's see what this says. The table and histogram shows some information about the times taken by a group of students to travel to school one day with no spamming. Complete the histogram. Okay, so the only thing that's left for us to draw, actually not the only thing, yes, in fact, yes, the only thing is this. Okay, so हम देख सकते हैं 0 to 10 वाला नहीं बना हुआ, इनफैक्ट 0 to 10 वाला भी बनाना है. सो इसके लिए हम करेंगे 28 upon 10 so that we can work out the frequency density. Frequency density, remember, is frequency upon class width, और class width होता है इनका difference basically. ठीक है, अच्छा, so frequency is 28 divided by 10 is 2.8. अब 2.8 कहाँ तक जाएगा, ज़रा ये देख लेते हैं. 2.8 आपका जाएगा, so 2 से 4 बॉक्सेस ऊपर जाएगा. Why? Because इसमें 1 जो है वो स्प्लिट हुआ हुआ है 5 बॉक्सेस में, सो 1/5 है 0.2. ठीक है, अच्छा, फिर यू हैव दिस 18 upon 30
18/30 को 3 से सिंप्लीफाई कर लो तो 6/10 विच इज़ 0.6. सो दैट मीन्स ये जो है आपका वो 0 से 3 बॉक्सेस ऊपर जाएगा. सो देयर यू गो, दैट्स इट. What only 18/30? 18/30 is because frequency is 18 and 30 is the class width. Okay, complete the histogram. Well, we just did that. Find the value of m. Okay, so if I want to find out the value of m, so हम इसकी बात करें. जो एरिया होता है ना किसी भी बार का, रिमेंबर दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. सो ये जो आप देख रहे हो, इसकी जो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी 0.2 है. ठीक है. एंड द क्लास विड्थ इज 60. ठीक है. लाइक आई सेड, यू कैन ईदर यूज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ फॉर अ फॉर्मूला, और यू कैन जस्ट फाइंड आउट द एरिया. सो 0.2 टाइम्स 60, ठीक है, हो जाएगा आपका 16 × 2 इज़ 120. 120 का एक डेसिमल कम, एक डेसिमल पीछे ले आओ. सो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? दैट इज़ इक्वल टू 12. ठीक है. सो लेट्स मेक अ हैबिट ऑफ गिविंग द आंसर जहाँ पे स्पेस दी हुई है. वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रैवल टू स्कूल. अच्छा, हमारे पास क्योंकि m की वैल्यू आ गई, मोर देन हाफ एन आवर का मतलब मोर देन 30 मिनट्स. तो उसमें क्या होगा? उसमें ये 18 भी होंगे, उसमें ये 12 भी होंगे. सो 18 + 12 डिवाइड बाय द टोटल. अच्छा, टोटल कैसे निकालें? टोटल के लिए हम सबको सम कर देते हैं. लेट्स जस्ट डू दैट मेंटली. 18 + 12 करेंगे तो दैट्स गोना बी 30. सही है. सो 30 ये हो गया. 28 + 52 कर लो तो ये हो जाएगा आपका 60, 70, 80. 80 + 40 is 120. 120 + 30 is 150. Okay, so 30/150. परसेंटेज चाहिए होती तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए. सो 3/15 इज़ इनफ, विच देन ऑफ कोर्स विल बी सिंप्लीफाइड टू 1/5. क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है इब्राहिम? ज़रा मुझे दोबारा बताओ. टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन. खैर, मैं इतना ये सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 24. दिस इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन इज नॉट लाइकली टू कम इन पेपर 1, बट इट कैन कम इन पेपर 1. ठीक है. सो इफ़ इट डज कम इन पेपर 1, देन दैट मीन्स उसमें ज़ाहिर है पेपर 1 वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे. मतलब उसमें आपको इतनी हार्डकोर कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी. प्रॉब्ली पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि पाई को 3 के बराबर ले लो, यू नो, स्टफ लाइक दैट, और मे बी पाई कैंसिल हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मेंसुरेशन कमिंग इन पेपर 1. ठीक है. अच्छा, मैं I'll come back to this. Let's get done with this first. I'll come back to your question, Ibrahim. Let's get through with this. So it says the ratio of the area of the sector, area of the circle, the ratio of the area of the sector to the area of the circle is 8:1. Okay, the diagram shows a sector of circle with radius 3r, सही है, and a degrees and a circle with radius r centimeter. ठीक है. The ratio of the area of the sector to the area of the circle with radius r is 8:1. ठीक है. तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं, डिवाइड बाय सर्कल का एरिया करते हैं, और उसको इक्वल्स टू 8/1 कर लेते हैं. ठीक है. सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? a/360, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर्ड. उसको हम डिवाइड करेंगे बाय पाई r स्क्वायर्ड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 8/1. ठीक है. नाउ देयर इज अ होल bunch of simplification that needs to be done. ठीक है. So be careful about that. और please जब 3r होल स्क्वायर कर रहे हो, so remember 3 भी स्क्वायर होगा, r भी स्क्वायर होगा. So a/360 multiplied by pi multiplied by 9r square over pi r squared is equals to 8/1. So pi और pi cancel हो गया, r square और r square cancel हो गया. Now what do we have? We have a/360 into 9 is equals to 8. ठीक है. a/360 into 9 is equals to 8. So that means a किसके बराबर हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 8/360 over 9. So a lot of simplification, not a lot actually. 9 ones are 9, 9 fours are 36, 0. a is equals to 8 into 40. So a is equals to 320. That means 320 हमारा आंसर आ गया. ठीक है. Quite a lengthy question. Find an expression in terms of pi and r for the perimeter of the sector. Okay. So 3r और 3r तो ये हो गया हमारा 3r plus 3r plus the arc length, जिसके लिए हम करेंगे θ/360 into 2 pi r. अब थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 320/360
इंटू 2 पाई, एंड रिमेंबर हमारा r जो है वो किसके बराबर है, वो 3r के बराबर है, ठीक है. सो एंड 3r प्लस 3r मिला के 6r हो गया. सो ये हमारा कैंसिल हो गया. नाउ वी लुकिंग एट 6r प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 से. 4 8s are, 4 9s are, and 3 1s are, 3 3s are. I don't think we can simplify it any further. So 8 into 2 is 16. 16 upon 3 pi r. So there you go. 6r plus 16 upon 3 pi r. Yes बेटा, इसमें follow through mark होता है, ठीक है. It's not actually error carried forward, it's follow through now, ठीक है. So follow through mark इसमें आपको मिल जाएगा. Okay, question number 25. Pretty simple. The nth term of a sequence is given by n square minus 5n. Find the second term in the sequence. Second term का मतलब n की जगह 2 रख दो. 2 square minus 5 times 2. So that's 4 minus 10, which is equal to minus 6. The pth term in the sequence is 150. So that means p square minus 5p is equals to 150. इसको left hand side पे लेके जाओ. p square minus 5p minus 150 is equals to 0. Middle term breaking करेंगे ऐसे. माइनस 150 के फैक्टर्स बनाएंगे जिनका सम जो है वो किसके बराबर है, -5 के बराबर है, ठीक है. सो दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर, लेकिन इसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि 10 और 15 आर द नंबर्स. अब क्योंकि आपने सम नेगेटिव रखना है तो आप माइनस साइन जो है 15 के साथ लगाओगे. सो पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 15p माइनस 150 इक्वल्स टू 0. p कॉमन निकाला, p प्लस 10 माइनस 15 कॉमन निकाला, p प्लस 10 इक्वल्स टू 0. सो p माइनस 15 और p प्लस 10. अब इसके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा p इज इक्वल्स टू 15 और एक आएगा p इज इक्वल्स टू 10. माइनस 10 सॉरी. अब जल्दी से बताओ कौन सा एक्सेप्टेबल है. विच आंसर शुड बी एक्सेप्ट एंड विच आंसर शुड बी रिजेक्ट. वैसे तो मैं आंसर लिख ही चुका हूँ देखा जाए तो, लेकिन वाई कैन इट नॉट बी -10. Because it has to be positive, yes. Sir, can you explain when do we make dotted line? Dotted line आप जब बनाते हो जब आपका equal to sign नहीं होता, ठीक है. For example, if it's just greater than, if it's just lesser than, that is when you make a dotted line, ठीक है. Hello, Gul Nawaz. Okay, part B. Part B says the nth term of another sequence is 3n square minus kn. The fifth term of the sequence is 55. तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं. आई थिंक बस अब एग्जामिनर जो है वो मार्क्स पूरे कर रहा है कि किसी तरह से 80 मार्क्स का हो तो जान छुटे. तो जस्ट प्लगिंग इन. ओके, सो 5 square is 25. 25 times 3 is 75. 75 minus 5k is equals to 55. So 5k is equals to 75 minus 55. That's 20. K is equals to 20 upon 5, which is equal to 4. How to enter the class? What class, beta? Okay. Question number 26. Again, very simple. Make P the subject. So cross multiply karo. So T into P minus 4T is equals to P plus 3. Get all the P's on one side so that you can make it the subject comfortably. TP minus P is equals to 3 plus 4T. Take P common, तो ये हो जाएगा T minus 1 is equals to 3 plus 4T. Make P the subject, so 3 plus 4T over T minus 1 is your answer. Okay, part B. Part B में चलो मैं डिनोमिनेटर फैक्टराइज कर रहा हूँ. I want you guys to factorize the numerator for me, ठीक है. So 2x square minus 9x minus 5. So minus 5 into 2 is minus 10. So we're looking for factors of minus 10 that can sum up to minus 9. So the obvious option would be minus 10 into 1. Why? Because minus 10 into 1 is minus 10 plus 1 is what will give us minus 9. Okay. So 2x square minus 10x plus x minus 5. So 2x common nikala, x minus 5. 1 common nikala, x minus 5. So you have 2x plus 1 into x minus 5. Okay, did you guys factorize the numerator for me yet? Two x plus 1 into
yes 2x plus 1 into 2x minus 2. Thank you. Okay, अच्छा in case anyone's wondering कि ये कैसे हो रहा है, तो देखो 4x square is a perfect square because 2x का square है और 1 तो होता ही perfect square है, perfect square, perfect cube, whatever you want. So that means now we're looking at a square minus b square, which can be written as a minus b into a plus b. So that means 2x minus 1 into 2x plus 1. So 2x minus 1, 2x plus 1 and 2x plus 1 gets cancelled out, and you're left with 2x plus 1 over x minus 5 as your final answer. Okay, so that's it. अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन मुझे समझाना था. किसका क्वेश्चन था? इब्राहिम, आई थिंक इट वाज योर्स. हाँ, सो बेसिकली m की वैल्यू चाहिए थी ना. अब इसकी हमें 2x minus 1 ही तो किया मैंने. What have I done? Oh yeah, sorry. Thank you. Lost another mark there. अच्छा, क्या था? Ibrahim, can you tell me, remind me again कि कौन सा था? ऊपर scroll करना पड़ेगा. Square root of minus 4 नहीं होता बेटा. Square root of minus 4 doesn't exist. इसमें आई थिंक आपको m की वैल्यू पूछनी थी. तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ. सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.6 थी एंड फ्रीक्वेंसी क्या थी नहीं पता. क्लास विड्थ 60 थी. क्रॉस हाँ 60 थी, सॉरी. 0.6 नहीं थी, इनफैक्ट 0.2 थी. तो 60 इंटू 0.2 करके हमने निकाल लिया था. b का फर्स्ट पार्ट. So does that explain it? Whatever I just did, frequency density is equals to frequency upon class width करके. B पार्टी तो समझाया बेटा. Okay, great. What marks to get A star? As many as possible. पेपर के थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन यू शुड बी एमिंग फॉर 170 प्लस. ठीक है, चलें. सो आई एम गोना स्टॉप हियर गाइस. पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में डाल दूंगा. प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम इफ़ यू हैवंट येट, एंड आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो विद अनदर पास्ट पेपर. ठीक है, कल हम एक और पास्ट पेपर करेंगे, मे बी इफ़ टाइम अलाउज कल हम 2 पास्ट पेपर्स कर लेंगे. आपका जवाब सर मैंने काफ़ी पेपर कर लिए हैं, तो आई वांट टू आस्क कि मैं जिनमें मार्क्स लूज़ कर रहा हूँ उन्हीं के टॉपिकल करूँ या ईयरली ही करूँ. आई एम गेनिंग मोर देन 65 मार्क्स इन P1. ओके, लेट मी थिंक. सो देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी एक ही टॉपिक में मार्क्स लूज़ कर रहे हो तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको इसके टॉपिकल करने चाहिए. या किस कंसिस्टेंटली 2-3 टॉपिक्स हैं, मे बी ट्रांसफॉर्मेशन है, मे बी काइनेमैटिक्स है, उसमें अगर आप मार्क्स लूज़ कर रहे हो तो फिर तो आपको क्या करना चाहिए? फिर तो आपको उस टॉपिक के पास पेपर्स करने चाहिए टॉपिकल. नो, नॉट 170 आउट ऑफ 200, 170 आउट ऑफ 180. फिर आप उसको कन्वर्ट करना आउट ऑफ 200. कैसे? 170 अपॉन 180 इंटू 200. जिस तरह से परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं ना, आउट ऑफ 200 निकालने के लिए इंटू 200 करते हैं. ठीक है. एंड अगर आपका ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक में मार्क्स नहीं लूज़ कर रहे, अगर आप ओवरऑल मार्क्स लूज़ कर रहे हो, तो फिर आप वही पेपर्स जिसमें आपके मार्क्स कम आए आप उनको दोबारा करो. इन दीज लास्ट डेज एटलीस्ट आज और कल ईयरली पास पेपर्स करो. फोकस ऑन योर वीक एरियाज. अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो. स्ट्रेंथ्स, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है ना, दैट्स ग्रेट. और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, उस हिसाब से देखो कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उस हिसाब से क्या आपके प्रेपरेशन कैसी है, उन टॉपिक्स में आपकी प्रेपरेशन कैसी है. सर प्लीज़ रिप्लाई, आई एम नॉट रियली गुड एट मैथ्स बट आई एम स्कोरिंग 80 प्लस इन P2. If you're not good in maths, then it's not possible to score 80 plus in P2 and 75 in P1. 75 out of 180, I mean आप अच्छे ही होंगे जब भी आप स्कोर कर रहे होंगे. इतना आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें अपने आप को. ठीक है, आई थिंक आप
just maintain these scores, and that's it. That's all you have to do. Okay, boys and girls, that's enough. See you tomorrow, inshallah, hopefully. Take care, everyone. Love this.